Good morning, students. I'm Ravind Kumar, science teacher, Halwasia Vidya Vihar. In a previous video, studied chapter 3rd, atoms and molecules, and the topic molecules, how atom exists, and the types of the molecules, molecules of element, molecules of compound. Today, study ions. और आपको देखिए, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हाउ एटम एग्जिस्ट. Atoms combine to form the molecules and ions and exist in a free state in the form of a molecules or ions. What is ions? आयन हम कहेंगे कि न्यूट्रल एटम लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स चार्ज डेवलप ऑन इट. सच चार्ज particles is known as a ions. Neutral atom of the elements gain or loss electron. Charge developed on it, and such charged particles is known as a ions. In a compounds have two types of a compounds: covalent compound and ionic compounds. In a ionic compounds formed by metal and non-metals. Metals having ability, metal having tendency to lose electron and forms the positive ions. Such positive charged ions is known as a cation. And the non-metal gain electrons and forms the charge. Such charge is negative charge, and negatively charged particles is known as a anion. अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए सिंपल हम कंपाउंड्स को देते हैं. Any compound, for example, sodium chloride, sodium chloride, sodium chloride, इसका फार्मूला होता है NaCl. क्या फार्मूला होगा? NaCl. ये आपको 2 एलिमेंट से बने हुए हैं, तो सोडियम दूसरा क्लोरीन. सोडियम हमारा है मेटल, और मेटल की टेंडेंसी होती है लॉस इलेक्ट्रॉन. तो सोडियम लॉस 1 electron to form the Na+, and since such positive charge ion is known as a cation. तो हम क्या बोलते हैं? cation. And chlorine gain electrons to form the Cl minus. क्या बनाते हैं? Cl minus. Such negative charge ion is known as a anion. A cation and anion. Ions, two types of ions: cation and anion. Metals having tendency to lose electrons and forms
positive ion. Such positively charged ion is known as a cation. And the non-metals having tendency to gain electrons and forms negative ions. Such negatively charged ion is called anion. Positive charged ion and negative charged ion, when attract each other, opposite ions attract each other to form the opposite ions attract each other with a force of attraction. Such force of attraction is known as a covalent bond, ionic bond is called the ionic bonds. बॉन्ड का मतलब ध्यान रखिए तो साइंस में जो केमिकल बॉन्ड वर्ड यूज करते हैं वो है जो एटम है वो एटम मोलिक्यूल्स बनाता है और ये एक दूसरे के बीच इनके बीच फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगते हैं और इस फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को ही हम केमिकल बॉन्ड कहेंगे कि जो उसको पैक्ड करके रखता है उसको बॉन्ड करके रखता है दैट इज नोन एज ए केमिकल बॉन्ड्स। क्लियर? तो आयनिक बॉन्ड, कोहेलेंट बॉन्ड, कोहेलेंट बॉन्ड आपको नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कंबाइंड टू फॉर्म से कंपाउंड। सच कंपाउंड इज नोन एज ए कोहेलेंट कंपाउंड्स। आयंस के बाद हमारे पास जो डिफरेंस आते हैं पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस कहेंगे a group of atoms carrying charge is known as a polyatomic ions. Polyatomic ions. For example, ये polyatomic ions हैं जो आपको चार्ज कैरी करते हैं। सल्फेट क्या है? सल्फेट। सल्फेट में आपको SO4 माइनस 2 ये SO4 माइनस 2 आपका है, दैट इज SO4 इज द सल्फेट। ये है आपको ग्रुप ऑफ एटम्स, ग्रुप्स, और इस ग्रुप कैरिंग चार्ज, इसके ऊपर क्या है? चार्ज है, और इसी को हम बोलते हैं आपको पॉली एटॉमिक आयंस। पॉली एटॉमिक आयंस और भी हैं, OH है माइनस, जो होता है हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, जिस पर क्या चार्ज है? माइनस चार्ज है। नाइट्रेट NO3 माइनस, ये आपका हो गया नाइट्रेट, इसको लिए क्या होंगे? कैरिंग चार्ज। अमोनियम NH4 प्लस, ये आपका होता है अमोनियम, अमोनियम आयन, यहाँ पर +1 चार्ज है। एंड चार्ज, सब चार्ज पार्टिकल्स इज नोन एज पॉली एटॉमिक आयंस। पहले क्या लिए? आयंस को। आयंस के बाद हमारा क्या आ जाता है? टाइप्स ऑफ आयंस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयन, कैटायन, एनायन, एंड थर्ड हम क्या दिए? पॉली एटॉमिक आयंस। क्लियर? अब इस पॉली एटॉमिक आयंस के बाद हमारा अनदर टॉपिक्स आता है, तो हम केमिकल कंपाउंड्स, केमिकल फार्मूला। देखिए, हमने प्रीवियस में पढ़ा, पिछले जो वीडियो थे उसके अंदर हमने ये लिया था कि आपको सिंबल्स हमारा किस तरह से है? जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, ये हमारा सिंबल्स की तरह है, और ABCD से ही उसको हम जोड़कर बनाते हैं। क्या चीज? उसको जोड़कर हम वर्ड्स बनाते हैं। सिमिलरली ये सिंबल्स हैं, उन सिंबल्स को जोड़कर हम बनाते हैं फार्मूला। तो फार्मूला हमारा क्या होगा? केमिकल फार्मूला है, दैट इज डिफाइंड एज chemical formula of the compound is symbolic representation of its component.
ये क्या हो गया आपको? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। केमिकल फार्मूला इज डिफाइंड एज केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला को हम क्या कहेंगे? द केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड। केमिकल फार्मूला, द केमिकल फार्मूला of a compound is symbolic representation of composition of a compound. Composition of a compound. अब ये हमारा क्या है? ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे? केमिकल फार्मूला। ठीक है, केमिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड। जो कंपाउंड के कंपोजिशंस हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। कंपोजिशन ऑफ ए कंपाउंड, ऑफ इट्स कंपाउंड वर्ड्स हम यूज करते हैं। क्लियर? इसमें एक वर्ड्स और आता है हमारा, उसको हम कहते हैं वैलेंसी। क्या कहेंगे? वैलेंसी। अब इस वैलेंसी को डिफाइन करने के लिए कहेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ द एलिमेंट इज नोन एज ए वैलेंसी। देखिए, इसको हम डिफाइन करेंगे। वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी, combining capacity of an atom of the element is called वैलेंसी। अब इस वैलेंसी के बारे में जानते हैं। देखिए, ऐसे तो इसको हम अगले क्लासेस में भी स्टडी करेंगे, चैप्टर में इस पर हम फोकस करेंगे। लेकिन अभी हमें जो फार्मूला बनाना है, इसके लिए हमें जरूरत है वैलेंसी। जनरली आपको जो आयंस होते हैं, उन आयंस से ही हम उस एलिमेंट्स की वैलेंसी को फाइंड आउट कर लेते हैं। कोई भी कंपाउंड्स हैं, उस कंपाउंड्स में कितने आयंस बने। से अगर आप उसमें हमारा सोडियम था, सोडियम में हम क्या देखते हैं कि इसका Na+ है। Na+ का मतलब है कि इसकी वैलेंसी +1 है। वैलेंसी इसका 1 है। Na+ है, इसका मतलब वैलेंसी क्या हो गया? 1 है। और क्लोरीन है, क्लोरीन का में भी 1 है। मीन्स यहाँ पर आपको Cl- है, -1 है, इसकी वैलेंसी 1 है, और +1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है। इसको हम सिंपलेस्ट वे में जान। देखिए, ऑक्टोपस होता है। ऑक्टोपस का मतलब है कि उसके हाथ एक इसके हैंड्स है। अब सपोज कर लीजिए, और हमें ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास कितने? 2 हाथ हैं। हैंड्स हमारे क्या हैं? 2 हैंड्स। तो अगर हम उसको जोड़ते हैं, ये ऑक्टोपस आपका हो गया, और इसका ये आपको 8 हैंड है। अब ये हम
2 हेड्स हमारे पास है, तो एक आदमी यहाँ पर आकर कनेक्ट हो गया, दूसरा इसके हो जाएगा, फिर तीसरा इसको पकड़ लेगा और चौथा इसको पकड़ लेगा। यदि एक ऑक्टोपस कितने लोगों के साथ जुड़ जाता है? ये 4 के साथ जुड़ जाता है। और ये बताता है, ये जो सेंटर है ये एक्सप्लेन हमें करते हैं कि, और फिर वो सभी उसके हैंड्स क्या हो गए? कनेक्टेड हो गए। तो ये जो चीजें हैं ये बताता है, आपको एक्सप्लेन करता है कि एक ऑक्टोपस 4 आदमियों के साथ जुड़ा हुआ है, फिर ये कंप्लीट बॉन्डेड होता है, एक दूसरे के साथ जुड़ जाता है। अब यहाँ पर जो ऑक्टोपस है उनके लिए तो क्या है? 8 है, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स के लिए अगर देखेंगे तो हर एक जगह पर ये 2-2 के साथ जुड़ा होता है। तो इसका जो वैलेंसी हो गया वो कितना होगा? ह्यूमन के लिए हो जाएगा 2, और ये ऑक्टोपस के लिए क्या हो जाएगा? 8 से कॉन्टेक्ट होते हैं। सिमिलरली इन फॉर्मेशन ऑफ ए कंपाउंड, मतलब कंपाउंड्स के फॉर्म करने के लिए हम जनरली आयंस के बेस पर हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, और इसको हम टेबल से ध्यान रख सकते हैं कि इसमें कैसे बना। ठीक है, वैसे हम नेक्स्ट चैप्टर में जाकर इसको एक्सप्लेन भी करेंगे कि इसका एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन से हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा, और इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम वैलेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ भी आपको मैं एक बार कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के बारे में बता देता हूँ। सिंपल जो हमारा 1 से लेकर 20 तक, 1 से लेकर जो 20 तक एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स का सिंबल्स, उसके एटॉमिक नंबर, उनका कॉन्फ़िगरेशंस, उनको किस तरह से हम अरेंज करते हैं इन एन एटम, तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। आप ये जानते हो कि एटम हमने ड्रॉबैक्स में बताया था, इसके डाल्टन्स के ड्रॉबैक में हमने एक्सप्लेन किया था कि एटम जो आपको हैं इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स कैरी यूनिट नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन्स कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूट्रॉन्स कैरी नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स आपका प्रेजेंट कहाँ होता है? आउटसाइड द न्यूक्लियस, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, एंड द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनसाइड में होते हैं। तो जनरली जो हमारा केमिकल रिएक्शंस है, उन केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, इलेक्ट्रॉन्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो हम उसको कहते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी पॉजिटिव चार्ज। ये इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम, इक्वल नंबर, इक्वल इन मैग्नीट्यूड्स and that causes equal no charge on an atom. एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा उस एटम्स में, उस एलिमेंट्स के एटम्स पर, उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, और जितना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर क्या होगा? उतना ही इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज डेवलप होंगे, यही आपको कंबाइन होकर आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। ये अपोजिट चार्ज जो है अट्रैक्ट ईच अदर विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। such force of attraction is called the ionic bonds. Clear? Any doubt? अब इसमें देखिए, जैसे हम कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर को मैं लिखता हूँ, और उसके एटॉमिक नंबर के साथ साथ हम आपको कुछ चीजें अभी बता देंगे। कॉन्फ़िगरेशन तो हमें आगे पढ़ना है, लेकिन हम यहाँ ध्यान रख सकते हैं। जैसे देखिए 20 तक आप एलिमेंट्स को ध्यान रख सकते हैं। हाइड्रोजन का होता है H,
और यहाँ हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा हाइड्रोजन। ये क्या है, हाइड्रोजन। दूसरा है हीलियम। ये क्या हो जाएगा, हीलियम। हीलियम, लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये हो गया आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, क्लोरीन और नियोन। नियोन, सोडियम, इसको हम जनरली यूज करेंगे। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम और ये हमारा है कैल्शियम। इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, ऑर्डर में याद रखेंगे। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का क्या हो गया, एटॉमिक नंबर 1। इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। ये 20 एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं। इनका तो नेम और सिंबल, ये हमारा सिंबल हो गया, ये एटॉमिक नंबर हो गया, ये नेम हो गया। इसके साथ हम और भी चीजें जोड़ सकते हैं। इसके मास नंबर को जोड़ सकते हैं। मास नंबर को हम राइट साइड में लिखते हैं, या इसको हम अब जो अपर केस है इसके अंदर हम मास नंबर को लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मास 1 होता है, हीलियम का मास 4 होता है, लिथियम का मास 7 होता है और बेरिलियम है इसका 9, बोरॉन 11, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, क्लोरीन के होते हैं 19, नियोन का होता है 20, सोडियम का होता है 23, मैग्नीशियम 24, एल्युमिनियम 27, सिलिकॉन 28, फॉस्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5, आर्गन का होता है 40, पोटासियम 39 एंड कैल्शियम 40। तो ये हम नाम ध्यान रख सकते हैं। यहाँ पर कोई भी हम एलिमेंट्स हैं, ऊपर में हमने लिया है, ये इसका है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं और ये हमारा जो नीचे है उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ जो हमारे पास दिया है इसमें हम कुछ एलिमेंट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स आपको कंपाउंड बनाने के लिए जरूरी है और आयनिक हैं, उन सभी का
चार्ज बता देते हैं और उस चार्ज से ही आप उसकी वैलेंसी को फाइंड आउट कर सकते हो। जितने नंबर पर आपको चार्ज होंगे, नंबर ऑफ द चार्ज ऑन एन एटम्स दैट रिप्रेजेंट्स द वैलेंसी ऑफ ए एटम ऑफ द एलिमेंट्स। तो इसमें आप ध्यान कर लें, जैसे हमारा पहले जो दिया है, जो कॉमन मेटल्स हैं उनके बारे में हम ध्यान कर लें। मेटल्स में सबसे पहले हम लोग यूज करते हैं Na+, यानी इसकी वैलेंसी हमारी कितनी हो जाएगी, +1 है, प्लस चार्ज है, +1 रिप्रेजेंट करता है, 1 वैलेंसी है। इसी तरह से पोटासियम है, इस पर भी +1 होता है, ये 1 आ जाएंगे, पोटासियम, सोडियम, पोटासियम। इसके बाद आपको आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम पर +2 है, यहाँ भी 2 होगा। कैल्शियम पर क्या होगा, +2 है, ये भी आपको 2 आएंगे। ये कॉमन कंपाउंड्स हमारे इससे बन जाएंगे। पोटासियम हो गया, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्युमिनियम है, इस पर +3 होता है और ये चार्ज क्या हो जाएंगे, 3 होंगे। इसके अलावे हमारे पास कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जिनके चार्ज होता है और इनको हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। दिस इज ड्यू टू इस पर डिफरेंट चार्जेस प्रेजेंट होते हैं, 2 और मोर देन में टाइप्स ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट। जैसे आपको आयरन है, आयरन पर +2 अगर होता है तो यहाँ चार्ज वैलेंसी कितनी हो गई, 2, और इसको हम बोलते हैं फेरस। इसको क्या बोलते हैं, फेरस। और Fe+3 अगर होता है इसका मतलब क्या हो गया, 3, और इसको बोलते हैं फेरिक। इसको क्या बोलेंगे, फेरिक। ठीक इसी तरह से कॉपर है, कॉपर का आपको Cu+1 अगर 1 है, इसमें इसको बोलते हैं क्यूप्रस, क्यूप्रस और क्यूप्रिक। ये क्यूप्रिक ये आपका हो जाता है Cu+2 और वैलेंसी हो जाते हैं 2। इसी तरह से आपको और भी कॉमन जो कंपाउंड्स हैं, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हैं, जिंक पर भी इस पर होता है Z+2 और इसके भी आपको 2 आएंगे। ये कुछ कॉमन मेटल्स हैं जिनके बारे में हम आपको इसको दिए हैं और इसी से कंपाउंड बनते हैं और इससे आप आसानी से इसके चार्ज से ही आप इसकी वैलेंसी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स में देखिए हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पर दोनों चार्ज होते हैं, प्लस भी होता है माइनस भी होता है। इस पर अगर ये आपको प्लस चार्ज हो गया यानी 1 आएगा और दूसरा माइनस है तब भी ये 1 आता है और इसको कहते हैं हाइड्राइड। आईडी अगर हम लगा देते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। हाइड्रोनियम, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहेंगे तो H+ आएगा। ठीक इसी तरह से नाइट्रोजन है N-3, इसको हम लेते हैं नाइट्राइड और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है 3। नाइट्राइड वैलेंसी क्या हो गई 3। इसी तरह और भी नाइट्रोजन के बाद आपको आता है ऑक्सीजन -2, इसकी वैलेंसी 2 है और इसका नाम हम क्या देते हैं ऑक्साइड। इसी तरह और भी क्लोरीन है -1, इसको हम क्या लेंगे वैलेंसी 1 है और इसको कहेंगे क्लोराइड। ऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फाइड S-2 है, ये आपको 2 हो जाएगा और इसको कहेंगे सल्फाइड। और आपका फास्फोरस है पर -3, ये होता है आपको वैलेंसी 3 हो गया। फॉस्फाइड, ये कॉमन एलिमेंट्स हैं जिन पर भी चार्ज होता है। ये सभी हमारे नॉन मेटल्स हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन जिसका -1 होता है, इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 1 और इसको हम कहेंगे क्लोराइड। ये हमारे क्या आ जाते हैं एलिमेंट्स पर चार्जेज आ जाएंगे और इन चार्जेस को हम याद रखेंगे। कुछ हमारे ग्रुप्स ऑफ एटम हैं उनके लिए भी आप ध्यान रख सकते हैं और उनके चार्ज को याद रख सकते हैं। इसी को लेकर हम केमिकल फार्मूला बनाएंगे। जैसे देखिए अब NH4+ है,
इसको कहते हैं अमोनियम। ये क्या होता है? अमोनियम। और इस पर चार्ज क्या हो गया? +1। इसकी वैलेंसी भी 1 होती है। इसी तरह OH माइनस है, ये क्या हो जाएगा? इसके लिए 1 होता है। हाइड्रोक्साइड है, इसका भी क्या हो जाएगा? 1 होता है। इसी में और भी हम लेते हैं FCO3 माइनस, ये होता है बाइकार्बोनेट्स। ये क्या हो जाएगा? बाइकार्बोनेट्स। और भी आपको आएंगे जो आपको CO3-2 है, ये हो जाएगा कार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स पर वैलेंसी क्या आ जाएगी? ये 2 होगा। और आपका सल्फेट SO4-2, यहाँ क्या आ जाएगा? वैलेंसी 2 आएगा। सल्फाइड में SO3-2 आएंगे और इसकी वैलेंसी क्या होगी? 2 होगी। जी में आपको नाइट्राइट है NO3-1, यहाँ क्या आएगा? 1। नाइट्रेट है, नाइट्राइट है -1। यहाँ फिर फॉस्फेट है PO4-3, इसकी वैलेंसी होती है 3। ये कुछ कॉमन हमारे पास ग्रुप ऑफ एटम्स हैं। इन ग्रुप ऑफ एटम्स को लेकर हम आसानी से कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट डे हम इन आयंस को, आप लोग इन सभी आयंस के नेम और इसके जो वैलेंसी हैं उनको ध्यान रखेंगे और उसको हम आगे जो नेक्स्ट डे जाकर हम आपको ये बताएंगे कैसे केमिकल फार्मूला हमारा बॉन्ड होता है। क्लियर?